अभी फोटो खींच रहे ना उसी का। शेष जाड्यापहा A leader is one who knows the way. An opportunity to introduce our chief guest of the day, Dr. A.K. Chandrakar sir, Vice Chancellor Pandit Deendayal Upadhyay, Memorial Health Sciences and Ayush University. Sir is my teacher and has taught me ophthalmology during my MBBS course. He is present to join us today to enhance our joy. I extend my gratitude to our guest of honor, Dr. Vishnu Dutt sir, DME Raipur. Sir, you have always guided us and supported our institute for us to have you in this academic event, sir. I heartily welcome Dr. T. researcher and full of knowledge and experience. Sir, you are inspiration for all of us. I am very thankful to our patron chief and dean, Government Medical College Mahasamund, 25 MBBS seat this year. I welcome you, ma'am. I would like Academic Dean of the Lokmanya Tilak Memorial Medical College and Hospital. Sir is the eminent member of MBI Association. Thank you, sir. Now I request. Respected seniors, colleagues, juniors, and students, and all other delegates. It's been an honor for us, the Department of Biochemistry. And of course, and congratulations to everyone and welcome again for the first CME, for the first academic year of the first Government Medical College, Mahasamund. I would like to take the opportunity to thank all the speakers who have presented their talk and insight with us with the course of CME. Your work is truly inspiring and we are grateful for the opportunity to learn from the events. I also special thanks to the organizer of the CME for the hard work and devotion. Thank you, ma'am. Now I would invite Dr. P.K. Patra sir, our patron, to say a few words. पढ़ाने के लिए शुरुआत हो चुकी है क्योंकि नेशनल लेवल का सीएमई महासमुंद मेडिकल कॉलेज में करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब सिर्फ काम करना ही नहीं है, एकेडमिक काम को भी बढ़ाना ही है। इसका मतलब ये है कि इस सुझाव ये है कि मेडिकल कॉलेज के नाम को और आगे बढ़ाना है नेशनल लेवल पे। यही बात आपको आगे ले जाएगी क्योंकि अभी जितना भी कॉलेज में अभी जितने विगत लास्ट 2 साल से
जो सेमी होना चाहिए, जो कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, वो नहीं हो पाया था किसी कारणवश से, महामारी के प्रभाव के कारण से। लेकिन अब यहाँ पे चालू हो गए हैं, तो इसको बिल्कुल कंटिन्यू करिए। हम ये भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट से ये जैसे CME कराना हो, स्टेट कॉन्फ्रेंस कराना हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस कराना हो, तो पैसे की यहाँ कमी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे फंड हैं, ऑटोनोमस से लेकर के सरकारी फंड सबको हम लोग देते हैं, और ऐसे एकेडमिक काम के लिए कोई मतलब हमको कोई कंजूसी नहीं करना है और काम भी करना है। बच्चे लोग यहाँ पे जितने भी आए हैं, मेडिकल कॉलेज अभी लगभग सब मिला करके छत्तीसगढ़ में लगभग 1800 के आसपास मेडिकल छात्र डॉक्टर बन के निकलेंगे। इसका मतलब अगले 5 साल में डॉक्टर्स फाइनल ईयर के बाद पे PG फटाफट मिले और PG करने के बाद अपना करियर चालू करो। The MCI norms. I was L1 MD biochemistry that time. So you think from 2005, I think 2007 we started the MD course in the Raipur Medical College, and gradually I think there are about 50 MDs is there in the state now. MD biochemistry. So it is a really happy moment for me, and all except Dr. Khodiar and Dr. Ingle, all are my students here, the biochemistry. So that is for a teacher, it is a very proud moment, and all the students are doing very well, and every time they are recognizing me, and I extend my sincere thanks for it. कॉलेज महासमुंद में 7th AMBI CG के अंतर्गत नेशनल CME ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। खासकर डीन डॉक्टर यास्मीन खान व कॉलेज के सभी स्टाफ मेंबर्स जिनके महासमुंद को NMC से 125 सीट की मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें एडमिशन्स भी हो चुके हैं। यह मेडिकल कॉलेज क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। यहाँ पर क्षेत्र के जितने भी वासी हैं उनको उच्च स्तर की सुविधा प्रदान की जाएगी, जैसे कि बाकी मेडिकल कॉलेजेस में हो रहा है। उनको यहाँ से रायपुर या दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा, उच्च स्तर की सुविधा यहाँ पर उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोविड-19 के भयावहता से पूरा विश्व पीड़ित रहा है, कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहा। इस कोविड-19 में डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी, जिसको लोगों ने इस कोरोना काल में समझा है। सबको समझ में आ गया कि डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, समाज का हिस्सा है। इन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बदौलत और दूसरे अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स केंद्र शासन, राज्य शासन के दिशा निर्देश और बेहतर प्रबंधन की वजह से, बेहतर टीकाकरण के चलते इस कोविड बीमारी से काबू पाया जा सका। परंतु अभी फिर से ये बीमारी सिर उठा रही है। काफ़ी सारे देश में कोविड के बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे हैं, तो WHO ने फिर से एक सर्कुलर जारी किया है कि इसमें सावधानी बरतिए, अन्यथा परेशानी का सबब ये बन सकती है। कोविड-19 की वजह से पिछले 2 वर्षों से फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस या CME नहीं हो रहे थे, परंतु आप सब लोगों को देख करके इस फिजिकल CME में काफ़ी हार्दिक खुशी हो रही है कि चलो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम हो गया है। मैंने सुना था कि 0 कोविड लेवल आ गया है यहाँ पर, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसको हम लोग सब मेंटेन करें। और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे मास्क लगा करके बैठे हुए, बहुत अच्छी बात है। इस नेशनल CME में रिनाउंड गेस्ट स्पीकर्स व प्रदेश के सुप्रसिद्ध बायोकेमिस्ट और साइंटिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
इसमें बायोकेमिस्ट्री, बियॉन्ड डायग्नोसिस, प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट, रिसेंट एडवांसेस इन क्यूरेटिव बायोकेमिस्ट्री पर अपने व्याख्यान देंगे। पिछले कुछ दशकों से मेडिकल के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुए हैं। नए नए इतने सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं। अगर आप 30 साल पहले की हम बात करें तो बिल्कुल डिजिटल इक्विपमेंट्स तो होते ही नहीं थे, पर अब हम डिपार्टमेंट जाएं तो हाईटेक इक्विपमेंट सभी जगह आ गए हैं। बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ डायग्नोस्टिक ही नहीं, क्यूरेटिव बायोकेमिस्ट्री, थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट के अंतर्गत पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जेनेटिक स्टडी, जीनोम सीक्वेंसिंग, स्टेम सेल थेरेपी, सिकल सेल मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, ऑटो इम्यून डिजीज ट्रीटमेंट, बायोमार्कर डेवलपमेंट इन वेरियस डिजीजेस पर अभी आज डिस्कशंस होंगे, जिसके लिए आप जितने भी डेलीगेट्स हैं आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। पुनः आप सबको CME के लिए बहुत बहुत बधाई।